Hello everyone. Now in our mechanics of solid, today we are going to see some example based on support reaction. Now before we going to see some example based on it, in a previous video we saw that different type of support reaction, types of beam, types of support and types of load acting on the beam. So first of all, क्या है what is introduction in our support reaction. So beam is a structural member subject to a transverse load. Its length is a large in a compression with its cross sectional dimension. Beam are used in a residential building, multi-story complexes, industrial building and bridges. Load from slab, floor, wall etc. transfer to column through a beam. Due to loading on a beam, reaction develop at the support. This chapter deal with different type of beam, type of load, type of support and reaction occurring at the support. So our next topic is reaction occur at the support. Now first of all, what is types of beam? So there are different type of beam like simply supported beam, overhanging beam, fixed beam, continuous beam, prop cantilever beam. So these are the different type of beam. So simply supported beam are known as a beam is supported in a two simple support, it is simply supported beam. Then cantilever beam, one and fixed and another free, it is cantilever beam. Continuous beam, it has more than two support, it is continuous beam. Then prop cantilever beam. Then types of load. So first of all, point load. So the load concentrated at a one point, it is called point load. ठीक है. So unit of point load is equal to Newton or kilonewton. Then after uniformly distributed load, so load uniformly distributed on a certain length of a beam is called uniformly distributed load. It is written as UDL. It's shown by W and unit of UDL is kilonewton per meter or Newton per meter. Then uniformly varying load. So this type of load gradually increase or decrease on the length of the beam. It is also called triangular load. Now next is types of support. So different type of support are simple support, roller support, hinge support and fixed support. So in a simple support, in this type of support, beam is simply supported on the support. There is no connection between beam and support. At this type of support, only vertical reaction will be produced. Then hinge support. The beam and support are connected by hinge. Beam can rotate about the hinge. Reaction may be vertical, horizontal or inclined. Now next is roller support. So in this type of support, roller are placed below the beam and beam can slide over the roller. So reaction will be perpendicular to the surface on which roller are supported. So this type of support is normally provided at the end of the bridge. So due to braking force of the vehicle and the temperature forces, bridge slab can slide over the roller support and damage the bridge pier can be avoided. Now fixed support. So beam is completely fixed at end in the wall or a support. Beam cannot rotate at end and reaction may be vertical, horizontal, incline and moment. Now how to take a moment at different type of load? So there are considered the clockwise moment is positive and anti-clockwise moment is negative. Now here is example is a simply supported beam 8 meter span subjected to 2 point load 50 kilonewton and 100 kilonewton at a 2 meter from each support. It is also subjected to a uniformly distributed load of 20 kilonewton per meter on a full length. Find reaction at the support. So first of all हम क्या करेंगे, जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से हम क्या बीम ड्रॉ करेंगे एंड लोड अप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली सपोर्टेड बीम है. सो इट इज़ सपोर्टेड बाय टू सिंपल सपोर्ट. स्पान क्या है, इट इज़ 8 मीटर स्पान सब्जेक्टिव 2 पॉइंट लोड. 2 पॉइंट लोड है, क्या है उसका 50 किलो न्यूटन एंड 100 किलो न्यूटन. ठीक है. डिस्टेंस क्या है एट 2 मीटर फ्रॉम ऑफ ईच सपोर्ट. ठीक है, ईच सपोर्ट यानी कि यहाँ से 2 मीटर, यहाँ से 2 मीटर. सो रिमेनिंग लेंथ इज़ 4 मीटर. सपोर्ट से ईच सपोर्ट से 2 मीटर पे एक्ट हो रहा है. इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी कि UDL. वो कितना लग रहा है
20 किलो न्यूटन पर मीटर ऑन फुल लेंथ। फाइंड रिएक्शन एट दी सपोर्ट। अब हमें क्या फाइंड करना है? रिएक्शन RA RB, दिस इज C एंड D। ठीक है, तो ये गिवन डेटा है, उसके हिसाब से हमने बीम ड्रॉ किया। अब हमें क्या फाइंड करना है? सपोर्ट रिएक्शन एट ईच सपोर्ट। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग मोमेंट अबाउट ए। अब मोमेंट लेंगे हम पॉइंट ए से। सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यानी पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। सो हम मोमेंट अप्लाई करेंगे टेकिंग मोमेंट पॉइंट ए से हम पॉइंट लेंगे। सो एक को हम फिक्स कर देंगे, देन आफ्टर लास्ट जो सपोर्ट होगा उससे हम रिएक्शन लेंगे। सो आरबी क्या है? अपवर्ड। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? 2 मीटर, 4 मीटर एंड 2 मीटर। सो टोटल इज 8 मीटर। आरबी मल्टीप्लाई बाई 8। देन आफ्टर 100 किलो न्यूटन। ठीक है, तो 100 किलो न्यूटन फोर्स ए डिस्टेंस से कितना पे लग रहा है? इट इज़ 4 × 6, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 6। देन आफ्टर 50 कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? 50 मल्टीप्लाई बाई 2। फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो नाउ अब क्या फोर्स लग रहा है? 20 किलो न्यूटन। इट इज़ यूडीएल, होल स्पान पे एक्ट हो रहा है। सो 20 मल्टीप्लाई बाई 8, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लोड। ठीक है, टोटल लोड यूडीएल। अब पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया यूडीएल। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस 8/2, सो इट इज़ 4। सो 20 मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू 4। सो ये हो गया आरबी इंटू 8, आरबी इंटू 8, 50 मल्टीप्लाई बाई 2, 100 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड यूडीएल 20, होल स्पान 8, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2, इट इज़ 4। सो ये हो गया। सो आर बी इंटू 8 इज इक्वल टू 100 प्लस 600 प्लस 640। सो आर बी इंटू 8 इज इक्वल टू 1340। सो आर बी इज इक्वल टू 167.5 किलो न्यूटन। आर बी हमें मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? आर ए। तो आर ए कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास टोटल लोड क्या है? टोटल लोड क्या है? 50 प्लस 100 प्लस यूडीएल कितने का है? 20, कितने पे लग रहा है? 8। सो 50 प्लस 100 प्लस 160। ठीक है, 50 प्लस 100 प्लस 8 इंटू 2, सो 160, सो 310। टोटल लोड क्या होगा? 310। सो आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू टोटल लोड। चलो हमें क्या मिल गया? आर बी मिल गया। सो हमें आर ए फाइंड करना है। तो आर ए इज इक्वल टू टोटल लोड माइनस आर बी। ठीक है, आर ए इज इक्वल टू टोटल लोड माइनस आर। टोटल लोड क्या है? 310। आर बी हमें फाइंड किया है, इट इज़ माइनस 167। सो हमें आर ए मिल जाएगा 142 किलो न्यूटन। ठीक है, सो हमें आर ए मिल गया, आर बी मिल गया। ठीक है, दो वैल्यू मिल गई। सो इट इज़ द सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड रिएक्शन एट द सपोर्ट। Now next example is example 3. Husband and wife are lifting 200 Newton weight hang on a stick 4 meter long on a their shoulder, but wife is not in a position to lift more than 80 kilonewton. So find out the distance where the weight should be hung from here to stick. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्रॉ करेंगे। हस्बैंड है एंड वाइफ है। वो क्या कर रहा है? लोड लिफ्ट कर रहा है। ठीक है, 20 न्यूटन वेट, हैंग ऑन अ स्टिक 4 मीटर लॉन्ग। स्टिक पे हम वो लोड एक्ट कर रहा है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 मीटर, शोल्डर। सो बट वाइफ इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू लिफ्ट मोर देन 80 किलो न्यूटन। वाइफ की पोजीशन क्या है? वो 80 न्यूटन से ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर सकती।
ठीक है। तो हस्बैंड के साइड वेट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो वो वेट कहाँ पे हैंग हुआ है वो हमें फाइंड करना है। सो इट इज़ डिस्टेंस एक्स, ठीक है। इट इज़ 200 न्यूटन, 200 न्यूटन। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है एक्स, कि जो वेट हैंग हुआ है स्टिक के ऊपर वो कितने डिस्टेंस पे हैंग हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 4 मीटर। लोड हमारे पास है तो हमें आर ए एंड आर बी फाइंड करना है और एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर डब्ल्यू इज इक्वल टू 80 न्यूटन। जो वाइफ जो लोड लिफ्ट कर रही है वो क्या है 80 न्यूटन। सो हमें आर डब्ल्यू मिल जाएगा। वाइफ पे जो लोड कैरी कर रही है वो क्या है 80 न्यूटन। वी हैव टोटल लोड क्या है 200 न्यूटन। वाइफ के पास कितना है 80 किलो न्यूटन। तो हस्बैंड पे के पास कितना मिलेगा 200 माइनस 80, सो इट इज़ 120, ठीक है। आर ए 80 न्यूटन, जो वाइफ जो लोड कैरी कर रही है वो 80 है। टोटल लोड हमारे पास है तो हस्बैंड के पास 180 न्यूटन का लोड आएगा। सो आर डब्ल्यू आर एच। नाउ अब टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट एच यानी कि हस्बैंड के साइड हम मोमेंट अप्लाई करेंगे, मोमेंट लेंगे। सो आर डब्ल्यू इंटू 4, ठीक है। कितना आर डब्ल्यू इंटू 4 इंटू 200 इंटू एक्स हमें फाइंड करना है। सो आर डब्ल्यू इंटू 4 इज इक्वल टू 200 इंटू एक्स। आर डब्ल्यू क्या है 80 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 200 इंटू एक्स, ठीक है। सिंप्लीफाइड करेंगे सो एक्स इज इक्वल टू 1.6, ठीक है। तो जो लोड हैंग हुआ है स्टिक के अंदर वो हस्बैंड की साइड से कितने डिस्टेंस पे होगा 1.6 मीटर। और जो वाइफ के साइड से जो हैंग हुआ है इट इज़ टोटल लेंथ माइनस 1.6, सो इट इज़ 2.4। जो वाइफ की साइड से वो कितने हैंग हुआ होगा इट इज़ 2.4 डिस्टेंस पे। हस्बैंड की साइड से 1.6 एंड वाइफ के साइड से 2.4 मीटर। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड support reaction. Now next example is a man and boy carrying a 30 kilo weight by means of a beam 2 meter long. Self weight of a beam is 10 kg where the weight should be placed so that man can carry twice the weight carried by boy, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा क्या है अ बॉय कैरिंग 30 kg वेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाय मीन्स ऑफ बीम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बीम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वन साइड मैन एंड अनदर साइड इज बॉय। टोटल लोड कितने कैरी कर रहा है 30 किलो न्यूटन, ठीक है। टोटल लोड 30 किलो न्यूटन वो कैरी कर रहा है। सेल्फ वेट ऑफ बीम इज 10 kg। बीम का सेल्फ वेट क्या है 10 kg। वेयर द weight should be placed so that man can carry twice the weight carried by the boy। जो ये बॉय लोड कैरी कर रहा है, ठीक है। तो उसका हम कहाँ पे जो वेट प्लेस करेंगे एट दैट टाइम जो बॉय जो लोड कैरी कर रहा है वो उसका जो वेट है उसका मैन के साइड डबल हो जाएगा। तो वो हमें सेम एग्जांपल है एक्स फाइंड करना है। सो आर एम इज इक्वल टू लोड ऑन मैन, आर बी इज इक्वल टू लोड ऑन बॉय। तो सेल्फ वेट बीम के 10 kg विल बी एक्ट एट दी सेंटर। सेल्फ वेट सेंटर पे एक्ट होगा। लेट 30 kg बी वेट ऑफ दी एक्स फ्रॉम दी ए, ठीक है। नाउ इक्वेटिंग वर्टिकल फोर्स आर एम प्लस आर बी, सो इट इज 30 प्लस 40। आर एम प्लस आर बी रिएक्शन एट मैन एंड बॉय इज इक्वल टू 30 प्लस 10। टोटल लोड आएगा सो इट इज़ 40, ठीक है। देन आफ्टर हमें क्या फाइंड करना है जो मैन लोड कैरी कर रहा है वो ट्वाइस 2 इंटू लोड कैरिंग बाय बॉय। सो क्या होगा 2 RB प्लस RB इज इक्वल टू 40। तो 3 RB इज इक्वल टू 40। तो RB इज इक्वल टू 13.30 kg। जो बॉय कैरी कर रहा है लोड वो कितना आएगा 13.30 किलो न्यूटन। टोटल लोड हमारे पास है, ठीक है, इट इज़ 40।
माइनस बॉय कितना कैरी कर रहा है 13.33, ठीक है। तो मैन कितना कैरी करेगा 26.6 kg, ठीक है। तो ये डबल हो गया 33.3 इंटू 2, सो इट इज़ 26.6, ठीक है, जो हमें मिल गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे एक्स। तो एक्स कैसे आएगा, टेकिंग मोमेंट अबाउट एम से टेकिंग मोमेंट करेंगे, सो आर बी इंटू 2, टोटल डिस्टेंस क्या है 2, आर बी इंटू 2, सो इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स, 30 कितने डिस्टेंस पे लग रहा है एक्स, प्लस 10 इंटू 1, ठीक है। सो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स आर बी की वैल्यू है, ठीक है, हमें एक्स फाइंड करना है। आर बी की वैल्यू क्या है 13.33 इंटू 2 इज इक्वल टू 30x प्लस 10, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 30x इज इक्वल टू 16.66, सो x इज इक्वल टू 0.15 मीटर, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज 0.55 meter. So in this way we can find X and support reaction.